السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ہم اس کو کئی پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں اور اس کا آج پہلا پارٹ میں آپ کی خدمت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے وہ مشہور نبی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی کہ اولاد یعقوب کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں کئی صورتوں میں بنی اسرائیل سے سلطنت کا خاتمہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پر حکمران بننے کے کچھ عرصہ بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان سمیت مصر میں آ کر آباد ہو اور پرامن زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور ان کی نسلوں کو خوب بڑھایا۔ آپ علیہ السلام کی اولاد سے جو لوگ وجود میں آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اہل مصر نے انہیں تسلی دی اور ہر حالت میں ان کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ کچھ عرصہ تک تو اہل مصر نے اپنے قول کا پاس رکھا، بنی اسرائیل کے عزت و شرف کو تسلیم کیا، لیکن رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے علماء نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دی اور دنیا کے حصول میں مگن ہو گئے، اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر امیر سے حسد اور غریب کو حقیر جاننے لگے۔ بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اہل مصر نے بھی بنی اسرائیل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بعض اہل مصر نے یہ ذہن بنا لیا مصر میں بادشاہت کا حق صرف ہم اہل مصر کو ہے۔ بنی اسرائیل کو تو کنعان سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تو انہیں ہم پر بادشاہت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ مصر میں فرعون کی بادشاہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو اہل مصر کے دلوں سے ان کا مقام اور مرتبہ ختم ہو گیا اور وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی حمایت کرنا ختم کر دی اور اپنی ہی قوم کے ولید بن ریان نامی آدمی نام سے مشہور ہوا کی حمایت شروع کر دی، جو بہت جلد مصر کا بادشاہ بن گیا۔ وہ بہت بڑا ظالم، متکبر اور جابر تھا اور اپنی قوم کو بادشاہوں کی قسم اور بنی اسرائیل کو غلام سمجھتا تھا۔ وہ اپنی حکومت اور بادشاہت کے غرور میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے اپنے آپ کو رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بنی اسرائیل کو ہی ہے، اور فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورۃ نازعات آیت نمبر 24۔ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے کئی لوگوں کے گروہ بنا رکھے تھے اور ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو بہت کمزور کر رکھا تھا۔ سورۃ قصص آیت نمبر 4۔ فرعون کا خواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قطبیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کے کسی گھر کو نقصان نہ پہنچا۔ بیدار ہونے کے بعد بڑا خوف زدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا، اس کی تعبیر پوچھی اور انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے اسی وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی کشیدہ حالات میں ولادت۔ فرعون اپنے خواب کی وجہ سے بہت خوف زدہ تھا، اسے اپنی حکومت کے زوال کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے جو بھی امید سے ہو اس کے پاس جائیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی معلومات اکٹھی کریں۔ لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دے، اگر لڑکی ہو تو اسے باقی رہنے دے۔ اسی فرعون کی یہ چالیں تھیں۔ ادھر تقدیر الہی اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے ظالم بادشاہ، تجھے اپنے فوج کی کثرت، اپنے اقتدار کی طاقت اور وسعت سلطنت پر غرور ہے، لیکن عظیم خالق کی طرف سے تو غافل ہے جس کے تقدیر کا کوئی توڑ نہیں۔ فیصلوں کو رد کرنے کی کسی میں مجال نہیں۔ وہ ذات فیصلہ کر چکی، جس بچے سے تو خوف زدہ ہے، جس کے لیے تو بے شمار بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا، تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی، تجھے معلوم ہو جائے گا آسمان اور زمین کے مالک کی شان یہ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے پاس تمام قدرت۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی سال ہوئی جس سال
बच्चे कत्ल किए जा रहे थे। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई। अल्लाह ताला को इन कमज़ोर बंदों पर रहम आया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चुनाचा अल्लाह ताला ने इन्हें फ़िरौन के ग़ुलामी से निजात दिलाकर आज़ादी जैसी नेमत से नवाजना चाहा। फ़िरौन और इसके लश्कर को हलाक करके बनी इसराइल को इसके ज़मीन का वारिस बना। फ़िरौन, हामान और इनकी फ़ौजों को दिखाना चाहा कि खौफ की वजह से बनी इसराइल के बच्चों को वो कत्ल करवा रहे थे। इसका नतीजा वो अपनी आंखों से देख ले। आप अलैहिस्सलाम की वालदा हमल के दिनों में बड़ी फ़िक्रमंद। उन्होंने हमल के इब्तदाई अयाम ही से बहुत एहतियात की कि कहीं हमल की अलामत ज़ाहिर ना हो जाएं और दूसरों को इल्म ना हो जाए। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वो इनके बेटों को बुरी तरह ज़िबा करता और इनकी बेटियों को जिंदा रहने देता। बिलाशुबा वो फसाद फैलाने वालों में से था। हम ये चाहते थे कि इन पर एहसान फरमाएं जिन्हें मिस्र में कमज़ोर बना दिया गया। इनको दीन का पेशवा और सरज़मीन वारिस सरज़मीन मिस्र का वारिस बनाए और हम इन्हें ज़मीन पर इक़्तिदार अता करें और फ़िरौन, हामान और इनके लश्करों को कुछ दिखाएं जिनका इन्हें बनी इसराइल से खतरा। और इनकी जगह हमने इनको जो बिल्कुल कमज़ोर शुमार किए जाते थे इस सरज़मीन की मशरिक़ और मग़रिब का वारिस बना दिया जिसमें हमने बरकत रखी थी। इसी तरह बनी ए नबी, आपके रब का वादा अच्छा वादा बनी इसराइल के हक़ में पूरा हुआ। उन्होंने मसाइब पर सब्र का मुज़ाहिरा किया और हमने फ़िरौन और इसकी कौम को बनाई हुई चीज़ों के समेत उनकी ऊंची इमारतों और महलात को तबाह बर्बाद कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हिफाजती इक़दामात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब वलादत हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए इनकी वालदा के दिल में ये बात डाल दी कि अपने बच्चे के लिए एक संदूक बना लो। इन्हें ये ख़तरा महसूस हो कि फ़िरौन के कारकंदे आकर इनके बच्चे को कत्ल कर दें तो इसे संदूक में डाल के दरियाए नील में बहा देना। आपसे वादा है कि हम इस बच्चे को वापस आपको लौटा देंगे और इसे अपना रसूल मुंतखब फरमाएंगे। अच्छा, आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने इसी तरह किया। फरमाने इलाही, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इल्हाम किया, तुम इसे दूध पिलाते रहो और फिर जब तुझे इसके कत्ल का खतरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना और खौफ और गम ना कर, और यकीनन हम इसे तेरी ही तरफ लौटाएंगे। इसे अपने प्यारे रसूलों में से रसूल बनाएंगे। हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को वह इल्हाम किया जिसका जिक्र किया जा रहा है कि तुम इस बच्चा को संदूक में बंद कर दरिया में डाल दो। फिर दरिया इस संदूक को साहिल तक पहुंचा देगा। इसे मेरा और इस मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन ले लेगा और मैंने इसे अपनी तरफ से आप लोगों के लिए ख़ास मोहब्बत पैदा कर दी ताकि आप मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश और अपनी निगरानी में कर सकें। हज़रत मूसा फ़िरौन के महलात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अल्लाह अज़्ज़वजल से हुक्म की तामील करते हुए अपने बच्चे को एक मजबूत संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया। जब वह संदूक फ़िरौन के महल के करीब से गुजरा तो शाही खादमों ने इस संदूक को दरिया से निकालकर शाही महल में फ़िरौन की बीवी आसिया के सामने पेश किया। फ़िरौन की बीवी आसिया ने जब संदूक खोला तो कपड़े में लिपटे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मासूम चेहरा नजर आया और इसके दिल में आप अलैहिस्सलाम की शदीद मोहब्बत पैदा हो गई। इसने फ़िरौन से कहा, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, ये तो मेरी और आपकी आंखों की ठंडक है, इसलिए इसे दूसरे बच्चों की तरह कत्ल ना किया जाए। बहुत मुमकिन है कि ये बच्चा हमें कोई फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना। फ़िरौन ने जब इन मासूम और ख़ूबसूरत बच्चा देखा तो फ़ौरन चौंक पड़ा, कहीं ये वही इसराइली बच्चा ना हो जो मेरी हुकूमत के ज़वाल का सबब बनेगा। सोचकर इसने बच्चे को कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन इसकी बीवी रुकावट बन गई क्योंकि अल्लाह ताला का फ़ैसला हर चीज़ पर गालिब रहता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक दुश्मन के घर में इस बच्चा को महफूज किया कि वो इसे ज़रा बराबर भी नुकसान ना पहुंचा सके। इलाही है। इसी तरह फ़िरौन के घर में हमने इस बच्चे को दरिया से उठा लिया ताकि वो इनके लिए दुश्मन और बाइसे गम बने। शुबा फ़िरौन, हामान और इनके लश्कर बड़े ख़ताकार लोग थे। फ़िरौन की बीवी आसिया ने फ़िरौन से कहा, ये बच्चा तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक, इसे कत्ल न करो, बहुत मुमकिन है कि ये हमें कोई फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे ही अपना बेटा बना लें और अपने अंजाम से इस्लाम का फ़िरौन के घर में दूध पीना और परवरिश पाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब आप अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया, अपनी बेटी को खबरगिरी के लिए इनके पीछे रवाना किया। जब वो संदूक फ़िरौन के महल के करीब पहुंचा तो फ़िरौन के नौकर ने उठाकर इसे महल में ले आए। में खूबसूरत बच्चे को देखकर फ़िरौन की बीवी आसिया बहुत खुश हुई और बच्चे की परवरिश में ले लिया और शहर में बच्चों को दूध पिलाने वाली जितनी बेदाइयाँ थी सबको बच्चा पेश दूध पिलाओ।
हर एक ने बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार से बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी भी दाई के दूध का एक घूंट भी न पिया। अल्लाह ताला को यही मंजूर था। इसका नबी अपनी वालदा के सिवा किसी और का दूध ना पिए, इसमें ये मसलहत थी। इस बहाना से आप अलैहिस्सलाम अपनी वालदा तक पहुंच जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी भी दाया का दूध ना पिया तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने आगे बढ़कर कहा कि मुझे एक दाया का पता, मुमकिन है कि बच्चा इसका दूध पी ले और वो लोग भी बड़े अच्छे की देखभाल बहुत अच्छी तरह करेंगे। महल वालों ने फौरन इस दाया को यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को बुलवाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी गोद में जाते ही दूध पीना शुरू कर दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से निकालकर आप अलैहिस्सलाम की वालदा तक पहुंचा दिया। आपकी वालदा से जो वादा किया गया था वो पूरा कर दिया गया और लोगों को इसकी खबर भी ना होने दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का खौफ अमन से, फकीरी से, अमीरी और भूख से खुशहाली से बदल। आपकी वालदा फिरौन से शाही मालो इकराम पाती और अपने ही प्यारे बच्चे की परवरिश करती। इसी तरह अल्लाह तबारा ने फिरौन के घर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करवाई। इलाही है, मूसा याद करो जब आपकी बहन चलती हुई वहाँ पहुँची और वो कह रही थी, क्या तुम्हें इस औरत का पता बताओ जो इसकी सही परवरिश करे। इस तदबीर से हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लौटा दिया ताकि इसकी आंखें ठंडी रहें और वो गमज़दा ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का दिल बेकरार हो गया और अगर हम इसका दिल मजबूत ना कर दिया होता तो करीब था कि वो वाक़या राज फाश कर देती। ये इसलिए किया ताकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस लौटाने यकीन करने वालों में से हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने से कहा कि संदूक के पीछे पीछे चलती जाओ। चुनाचा वो इन्हें दूर से देखती रही और वो इससे लाइलम रही। हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर पहले ही दाइयों का दूध हराम कर दिया था। इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौनियों से कहा, मैं तुम्हें एक घर वालों का पता बताऊं जो तुम्हारे लिए इसकी परवरिश करें, वो इस बच्चा के खैर ख्वाह। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी वालदा के पास लौटा दिया ताकि इनकी आंखें ठंडी रहें और गमज़दा ना हो। ये जान लें कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं। इसी तरह नाजरीन, आज का हमारा एक ही हिस्सा मुकम्मल होता है और कल हम दोबारा एक नए हिस्से के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये के साथ दोबारा हाजिर। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लें।